जो है पैगन थ्योरी से लिया उसने उन्हीं कौन क्वेश्चंस में से। तो ये क्या है? क्या चीज? मेरा ख्याल है शायद प्रोनाउंस ठीक नहीं करी, पैगन है PAGAN या PAGON। पैगन थ्योरी से उसने ये एपिक लिया हुआ है। पेगन 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 का मतलब होता है जिनका कोई दीन नहीं होता। तो इफ यू टॉक अबाउट द रोमन्स they were not having a Christian like religion. They have their own religion. They do not accept any god. So talk about them, they were having various concept of god. So they were having, but the people like human being, they were gods over there. So they were हाँ pagans. जी, तो ये इसीलिए रिलेट नहीं कर सकती एपिक स्टोरी, क्योंकि एपिक स्टोरीज जो है वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती हैं। No, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी चीजें मुझे। epic is not related to Christianity. First of all, let me make it clear. It's not related to Christianity. It is related to the Roman Greeks, because this concept been given by the Roman Greeks. Roman Greeks, they are the founder of this epic, and they write poetry. They write poetry for their kings, queens, their warriors. They go for a 10-year wars, and when they come back, they narrate tales for them. They narrate poetry for them, and poetry in the form of narration. So there is a difference between ballad and epic. Ballad is always in the form of singing, while epic is in the form of the narration. And one thing more, when you talk about the ballad song, ballad is also a kind of poetry. It's also a song, but it is not having a length like this. You can't narrate within one day. Epic is a long narrative poem containing up to 12 books. So you can't narrate it in one day. You can't even tell to somebody in one day. So like Homer, he was the founder of Homer and Virgil. They are founder of epics. And how do they narrate? They just sit on the mountains and people sit around them and they started narrating poetry. होमर क्या करता था? आंखों से अंधा था और वो पहाड़ी पे चढ़ जाता और वहाँ पे गॉड्स से उनके जो म्यूज थे उनसे वो क्या मदद तलब करता कि मैंने ग्रैंड पोइट्री करनी है और प्लीज़ हेल्प मी, ब्लेस मी, इन्फ्यूज़ करो मेरे माइंड के अंदर ग्रैंड आइडियाज़. Today I will explain you what is grand idea, what is grand epic. एक ग्रैंड स्टाइल कैसे बनता है पोइट्री का, और एक लिखे हुए वर्क को खुद को ग्रैंड साबित करने के लिए उसे क्या करना होगा. On what parameters, what measures one has to take in a way to prove his style as a grand style. So Milton, he has fulfilled this standard, and you know that his style is known as grand style. Today we'll be discussing about what is the grand style of the Milton. We'll be talking about Paradise Lost as a Renaissance epic, Paradise Lost as a classical epic. We'll see with respect to both aspects, Renaissance epic and classical epic. If literary genre or literature, it is called to be Renaissance literature, what parameter he has to fulfill in a way to be called as a Renaissance literature, kind of Renaissance literature. When we talk about classical literature, what kind of element, what kind of parameter, what kind of standard literature has to meet up in a way to be called as a classical literature. So let's discuss. One by one, we'll be talking about classical poetry and classical epic and other epic. एक तो हमारे पास है रेनेसेंस एपिक, और क्लासिकल एपिक. आपको क्या लगता है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, वो पूछता है कि क्लासिकल एपिक या रेनेसेंस एपिक, तो आपने क्या करना है? क्लासिकल ओल्ड एज में चला जाएगा और रेनेसेंस जब चेंज हुआ था, चेंज का आया था जमाना, तब की हो जाएगी जब लोग ओरिजिनलिटी पे चले गए थे. फायजा, मुझे ये बताइए कि रेनेसेंस एज कहाँ से कहाँ तक है इंग्लैंड के अंदर? सिंस वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पोएट्स,
Milton, who's an English poet and a Puritan poet. We're talking about a Puritan poet, which is known as Christian poet, or English poet, Milton. So in England, what age, what century is to be called as a Renaissance age? From what to what age or century we can call it is the Renaissance age in Europe, especially in England? Not sure, maybe 16th to 17th century. यूरोप में कहाँ से कहाँ तक है? कोई आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा हाँ, नहीं। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। जब आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेनेसेंस एज पहली तो बात है क्या। ठीक है, रेनेसेंस एज आया था यूरोप के अंदर, स्पेशली इटली में 14th सेंचुरी में। 14 टू 17th सेंचुरी ओवरऑल है। ठीक है, रेनेसेंस एज। लेकिन इंग्लैंड में ये पहुंचते पहुंचते इसको क्या हो गया, 15th सेंचुरी तक तकरीबन टाइम लगा है। यानी ये यहाँ से फिर डेफिनेटली ट्रैवल करता हुआ इंग्लैंड और फिर फ्रांस आया, फ्रांस से फिर ओवरऑल पूरे यूरोप में फैला। अब 15th सेंचुरी में ये क्या हुआ है, ये इंग्लैंड आ गया और इंग्लैंड में ये 17th सेंचुरी तक रहा है। तो मिल्टन कौन सी सेंचुरी का पोएट है? ये भी राउंड अबाउट 17th सेंचुरी का पोएट है। ठीक है, उसकी एज बताती है कि 17th सेंचुरी। तो ये मतलब ये रेनेसेंस एज के अंदर आता है। किस एज के अंदर आता है? रेनेसेंस एज के अंदर। देखिए ये कंसेप्ट फायदा समझने वाले हैं। ये नहीं कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। असल में मैं एक नया ट्रेंड लिटरेचर को इस तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल आइडियाज़ बच्चे को दिए जाएं। वैसे तो नेट पे, गूगल पे इतना नॉलेज पड़ा है, आप उधर से पढ़ सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, रट्टा ही लगाना है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को। यानी पढ़ाने के लिए मैंने इसके ऊपर आई थिंक कोई 50 दफ़ा लेक्चर दिया है इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे 2 या 3 घंटे फिर भी लगते हैं रिसर्च पे। अब ये अंदाज़ा कर लें, मुझे बुक से पढ़ाने का कोई मसला नहीं है। आई कैन टीच। मैंने एक बच्चे को पढ़ाना हो या मैंने 50 बच्चों को पढ़ाना हो या 500 लोगों को पढ़ाना हो, मैं अपना हर लेक्चर ये सोच के डिलीवर करता हूँ कि बस ये मेरा आखिरी लेक्चर है और इस पे मैंने अटमोस्ट कोशिश करनी है कि बेस्ट डिलीवर करूँ। पता नहीं फिर मौका मिलना है या नहीं, उसका हक अदा करूँ। आई एम अ परफेक्शनिस्ट, पहली तो बात ये। तो मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि नए आइडियाज़ के साथ आई शुड कम अप विद न्यू आइडियाज़। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पर रहेंगे और लोग इसको सुनते रहेंगे, पास होते रहेंगे और हमें दुआएं देते रहेंगे। हमारे लिए बस ये रेनेसेंस एज देखिएगा, 15 से 17 सेंचुरी तक की जो एज है वो क्या है, वो हमारी एज है रेनेसेंस एज। अगर हमने साबित करना है किसी लिटरेरी जॉनरा को कि वो रेनेसेंस लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती है, रेनेसेंस उसके अंदर कोई पोएटिक डिक्शन है, स्टाइल है, रेट्रिक है, स्टाइल है, ग्रैंड स्टाइल है, तो किस तरह हम उसे साबित करेंगे? हम साबित करेंगे कि उसमें न्यूनेस क्या है। क्योंकि जो रेनेसेंस की एज है वो क्या कहता है कि रिवाइवल की एज है, रीबर्थ की एज है और री इंटरप्रिटेशन की एज है, री एनालिसिस की एज है, री ओरिएंटेशन की एज है। चीज़ों को नए तरीके से जांचा गया था और सेंटर ऑफ अटेंशन किसको समझा गया था? ये माइंड में अपने बिठा लें बात। सेंटर ऑफ अटेंशन ह्यूमनिज्म। और उस वक्त एक और फिलॉसफी चल रही थी ह्यूमनिज्म की, जिसका फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पेट्रार्क को कहा जाता है, वो भी इटालियन था। अब गौर से सुनिएगा बात। अगर किसी लिटरेचर के अंदर इन वैल्यूज़ के ऊपर जोर दिया जाता है, ह्यूमनिज्म पर, इंसानियत की वैल्यू को, इंसानों को, किसी के हकूक़ को, किसी की राइट को, डेमोक्रेसी को, न्यूनेस को, लॉजिक को, रेटरिक को, रैशनलिज्म को, ऑब्जेक्टिविज्म को, साइंटिफिक इंक्वायरी को, तो वो किससे रिलेट हो जाएगी? रेनेसेंस एज में। तो उससे पहले की जो एज थी, मेडिवल एज, वो क्या थी? दैट वाज टोटली रिलीजियस एज। पीपल वर थिंकिंग फॉर अदर पीपल, नोबॉडी इज अलाउड टू थिंक हिमसेल्फ। किसी बंदे को, लोगों को ये इजाजत नहीं थी कि वो अपने लिए खुद सोचें। कौन सोचता था? उनके फैसले कौन करता था? अदर पीपल, दे वर डिसाइडिंग देयर डेस्टिनी।
दूसरे लोग उनकी डेस्टिनी का फैसला कर रहे थे. पीपल आर टॉकिंग about them. People are deciding their fate. People are deciding what do or what not to do. Even religion was thinking about them. Religion उनके लिए सोच रहा था, इसलिए उसे कहा जाता है medieval age. That was the age of religion. But after that, when we come in Renaissance age, we think that there is a reinterpretation. People started exploring the literature of Roman Greeks. They explore and they find something new. Humanism, newness, creativity, orientations, reanalysis, reinterpretation, revival. तो नॉलेज का कहते हैं ना, रिवाइवल हुआ था. नई बुक्स मिल गई, रोमन ग्रीक्स की, सिसरो की, हॉरेस की, लॉन्जाइनस की, अरिस्टोटल की, प्लेटो की, ठीक है, एपिक्यूरियन फिलासफी, ठीक है. तो फिलासफी तो बहुत सारी है. जब मैं कभी आपको रोमन ग्रीक्स के ऊपर लेक्चर दूंगा तो आपको बताऊंगा कि सोक्रेटिक फिलासफी क्या है, प्री सोक्रेटिक फिलासफी क्या है, ठीक है, प्री सोक्रेटिक क्या है, सोक्रेटिक क्या है, आफ्टर सोक्रेटिक पीरियड क्या है. आई हैव स्टडीड ऑल. ये सारे फिलासफर को मैंने पढ़ा है, ठीक है. आई कैन टीच यू इवन फिलासफी एज वेल. किसी दिन टाइम मिला तो मैं उस पर फिर बात करूँगा. वेल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेनेसांस एज, हम बात कर रहे हैं 14 to 17 सेंचुरी की जो एलिमेंट्स हैं. फिर वो रेनेसांस एज के एलिमेंट हमने इसके अंदर देखने हैं. अगर आप अपने माइंड में वो पूरी स्टोरी रखो कि इसमें न्यूनेस की बात क्या हुई. इसने बात की मॉडर्न साइकोलॉजी की, कि इंसान का माइंड जो है, न्यूरोसाइंस जो है आज इसको डिस्कवर करती है कि इंसान का माइंड ही सब कुछ करता है. क्यों मिल्टन ने बात की तो कहाँ से की भाई? ये सब कुछ रोमन ग्रीक से लिया था, उसकी री इंटरप्रिटेशन हुई थी. कहते हैं कि मिल्टन ने रोमन लैटिन पे उसको बड़ा कमाल हासिल था. लैटिन ग्रीक पे उसे बड़ा कमाल हासिल था. उसने बड़ा थॉरोली उस लिटरेचर को स्टडी किया था. इवन कि वो ब्लाइंड हो गया था पढ़ के. तो स्टाइल तो उसका बनना था ग्रैंड कि उसने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, उसने जो सिमली यूज़ किया है, उसने जो मेटाफर यूज़ किए हैं, उसने जो सिलेक्शन ऑफ डिक्शन उसमें यूज़ किया, जो ब्लैंक वर्स बनाया है, उसने जो रेट्रिक उसके अंदर डाली है, जो ह्यूमरिक सिमली उसके, जो हेलेनिज्म उसके अंदर डाला है, लैटिन ग्रीक्स का नॉलेज उसके अंदर डाला है. नोबडी कैन इन्फ्यूज लाइक दैट. किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो उस तरह स्टडी करे, उस तरह का माइंड मिल्टन जैसा लेकर आए, उस तरह की इमेजिनेशन लेकर आए, उस तरह का रेट्रिक लेकर आए, उस तरह की परसुएसिव लैंग्वेज लेकर आए, उस तरह की बम्बास्टिक लैंग्वेज लेकर आए. नोबडी नोज अबाउट दिस. कोई भी नहीं जानता उस तरह की लैंग्वेज. तो इसलिए इसके स्टाइल को कहा जाता है बम्बास्टिक स्टाइल. इसके स्टाइल को कहा जाता है ग्रैंड स्टाइल. हम आज इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. अच्छा, ये तो आपने जब इसके अंदर मॉडर्न एलिमेंट्स तलाश करने हैं कि कहाँ कहाँ है. जैसे द माइंड इन इट्स प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल. टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल. कौन कहता है? आजकल डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात कौन करता है? लिबरल करते हैं, मॉडर्न करते हैं, डेमोक्रेटिक पीपल करते हैं. ये कौन है? ये भाई कौन है जो ह्यूमनिस्टिक इशू को उजागर करते हैं? ये कौन है कि सारे इंसान को आज़ादी हासिल है, चाहे वो अच्छा बुरा है, उसे आज़ादी होनी चाहिए. क्यों भाई ऐसा होता है? कहते हैं ना कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए. तो उसके अंदर मॉडर्न रेनेसांस एलिमेंट आ गया. यू हैव टू फाइंड. फिर ये कहलाएगी रेनेसांस एपिक. तो उसने उसकी पहली दफ़ा उसने बात की, मतलब ऐसे इशू को, मजहबी इशू को किसी की जरूरत नहीं थी कि मिल्टन के अलावा कोई उसको चैलेंज करता या इस तरह की चीज़ लिखता. कोई और लिखता तो उसको बेहेडेड कर दिया जाता. उस एज के अंदर भी, वहाँ पे उस वक्त भी प्योरिटन जो थे उनकी हुकूमत थी. और प्योरिटन मजहबी एज, मज़हब की तो तब भी थी, उसका इन्फ्लुएंस तो था, चाहे वो रेनेसांस एज ही आ चुकी थी. लेकिन आपको मैंने बताया कि प्योरिटन जो थे वो भी बड़े मजहबी लोग थे. ये भी उनका ही था. तो ये चूंकि उनका ही बंदा था प्योरिटन, तो इसने लिख दिया. चर्च ने भी इसको कुछ नहीं कहा. अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. हम थोड़ा सा एपिक को डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ एपिक. हाँ जी, एपिक क्या होती है? व्हाट इज़ एपिक? A long poem or writing? व्हाट इज़ एपिक? A long poem or writing? व्हाट इज़ एपिक? सर लॉन्ग नरेटिव पोइम को कहते हैं ना. Epic is a long narrative poem in which hero is put to
hero is put in troubles, and he has to do great adventures, campaigns, and he has to undergo lot of suffering. एंड ही हैज़ वन फ्ला, उसके अंदर हीरो जो है वो एक लॉन्ग फाइट पे जाता है, हीरोइक वो एडवेंचर करता है, और उसके अंदर एक सफरिंग, एक फ्ला होता है, और फ्ला जो है उसको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। मतलब को किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा। ये अरिस्टोटल की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है अरिस्टोटल के? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो कि 12-14 बुक्स पे कंसिस्ट करती हो, और उसमें एक कॉन्स्पिक्वस पर्सन होता है हु इज इन्वॉल्व इन एडवेंचरस इवेंट एंड अल्टीमेटली मीट ट्रेजिक एंड ड्यू टू ट्रेजिक फ्ला। अब ये चीज़ें एक किसके अंदर होनी चाहिए? एक एपिक हीरो के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने एपिक हीरो बनना है तो एक एपिक का जो हीरो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? पहली तो बात यह है कि वो एडवेंचरस वर्क करे। एडवेंचरस वर्क करेगा कोई तो फिर ही वो हीरो कहलाएगा कि कोई वो एडवेंचरस वर्क कर रहा है। ठीक है जी, एडवेंचरस वो कोई टास्क करे, इवेंट करे, उसके पास उसको टास्क दिए जाएं कि वो एडवेंचरस वर्क करे, और वो कॉन्स्पिक्वस पर्सन होना चाहिए। कॉन्स्पिक्वस पर्सन, बड़ा नुमायां एक शख्स होना चाहिए। फिर जी उसके पास क्या होना चाहिए? लॉन्ग नैरेटिव, नरेशन में होनी चाहिए लॉन्ग नैरेटिव। क्या होना चाहिए? लॉन्ग नैरेटिव पोएम होनी चाहिए। कितनी उसकी बुक्स बननी चाहिए? कम से कम 12 से 14 बुक। ठीक है जी, इस तरह लंबी होनी चाहिए, यानी कि एक दफ़ा बैठे और आप सुना दें। और फिर उसके अंदर मज़ीद टेल्स होनी चाहिए, मतलब उस टेल के अंदर फिर आगे टेल्स होनी चाहिए, और मजहबी कोई लोग भी उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी होने चाहिए। सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है वो क्या करे? हेल्प करे, लेकिन ये ना